اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی گوہر میم اپنا موضوع نظم پرندے کی فریاد لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچے سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول کیجیے۔ آج ہمیں اس نظم کی باقی ماندہ مشق کرنی ہے۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کیا تھا، اس کا خلاصہ لکھا تھا، اور آج جو باقی سوالات ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے یہاں پہ فرہنگ کے معنی ہے، الفاظ معنی ہمیں یہاں پہ الفاظ ہیں، ہمیں ان کے معنی لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کریں گے۔ قفس ہے، قفس کے معنی بچوں پنجرہ ہوتا ہے۔ رہائی ہوتی ہے آزادی۔ قسمت کو رونا، قسمت کو رونا کا مطلب ہے بد قسمتی پہ رونا، اپنی بد قسمتی پہ رونا۔ پھر ہے دکھڑا سنانا۔ دکھڑا سنانے کا مطلب ہے بچوں اپنے غم کا حال سنانا، ٹھیک ہے۔ دکھے ہوئے دل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل جن کو دکھ پہنچا ہو۔ بس میں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ اختیار میں ہونا، میرے قابو میں ہونا، کاش میں خود کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کامنی سی مورت، کامنی سی مورت کا مطلب ہے کہ پیاری سی صورت، یعنی کہ خوبصورت ہونا۔ جس دم، اس کا مطلب ہے جس وقت۔ آشیانہ، آشیانہ ہم گھونسلے کو کہتے ہیں، اپنے گھر کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ کامنی، کامنی مینز خوبصورت۔ صدائیں بچوں، یہاں پہ صدائے سواد سے صدائے لکھا ہے، تو سواد سے جو صدا ہوتی ہے اس کو آواز بولتے ہیں۔ یہاں پہ جمع لکھا ہے، صدائیں مینز آوازیں، اور ایک صدا ہوتا ہے جو سین سے شروع ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ چمن، چمن مینز باغ۔ چھٹنا، چھٹنا مینز دور ہونا۔ تو بچوں یہ تھے ہمارے الفاظ کے معنی۔ اب ہے سوال نمبر 2، سوالات۔ یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، ہمیں ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ پرندے کو گزرے ہوئے زمانے کی کون کون سی باتیں یاد آ رہی ہیں؟ بچوں یہ آپ نے پڑھا ہے، اور آپ اس کا خود جواب بھی دے سکتے ہیں کہ جو پرندہ ہے، پرندے کو اپنے اس گھونسلے میں کیا کیا یاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرندے کو گزرے ہوئے زمانے میں اپنا بتایا ہوا وقت یاد آ رہا ہے، جو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بتایا ہے، جو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتیں کی ہے، وہ یاد آ رہی ہے۔ پرندے کو باغ کی بہاریں، وہ چڑیوں کا چہچہانا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے خوف ہو کر گھومنا پھرنا، رات کو اپنے گھر لوٹنا وغیرہ، یہ باتیں اس کو یاد آ رہی ہیں۔ دوسرا سوال ہے بچوں، پرندہ قفس میں کس کی آواز سننے کی آرزو کرتا ہے؟ تو بچوں پرندہ قفس مینز پنجرہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرندہ قفس میں یا پرندہ پنجرے میں اپنے بلبل ساتھی کی آواز سننے کی آرزو کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے بلبل ساتھی، جو اس کا ساتھی ہے بلبل، اس کی آواز سننے کو ترستا ہے۔ شاباش۔ تیسرا ہے سوال، پرندہ خود کو بد نصیب کیوں سمجھتا ہے؟ شاباش بچوں، پرندہ اس لیے اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے ساتھیوں سے دور ہو کے پنجرے میں ایک قیدی کی زندگی گزار رہا ہے، جہاں پر وہ ان کی صورت ان کی آواز سننے کے لیے ترستا ہے۔ تو اسی لیے بچوں پرندہ اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شاباش۔ اب ہے چوتھا والا سوال، پرندے کو اپنے چمن کی کون سی چیزیں یاد آ رہی ہیں؟ شاباش۔ تو اس کا جواب یوں ہے کہ پرندے کو اپنے چمن کی بہاریں، پھولوں کا کھلنا، کلیوں پر شبنم کے قطروں کا موتیوں کی طرح چمکنا، اور اپنا پیارا سا گھونسلہ، پیارا سا آشیانہ، تو
प्यारा सा आशियाना या प्यारा सा घोंसला जैसी चीज़ें याद आ रही हैं। शाबाश। मैं दोबारा रिपीट करूँगी। परिंदे को अपने चमन की बहारें, फूलों का खिलना, कलियों पर शबनम के कतरों का होना और इन शबनम के कतरों का मोतियों की तरह चमकना, और परिंदे को अपना प्यारा सा आशियाना, प्यारा सा घोंसला, ये चीज़ें उसको याद आ रही हैं। शाबाश। फिर है 5वां सवाल कि किस्मत को रोने से क्या मुराद है। बच्चों, किस्मत को रोने से क्या मुराद है, ये 5वां सवाल है। तो हम कहेंगे कि किस्मत को रोने से मुराद अपने नसीब, अपने मुकद्दर, अपनी तकदीर को कोसना है, या दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि अपनी बदनसीबी और बदकिस्मती की शिकायत करना, ठीक ना, या बुरे वक्त का शिकवा करना। हम इसको बोलेंगे ये किस्मत को रोने से मुराद है। ठीक है, शाबाश। फिर और एक स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 3 है। लिखा है कि दिए गए मिसरों को नसर में लिखिए। ये कुछ मिसरे यहाँ पे हैं जो नज़म में हैं, हमें इनको मिसरों मतलब नसर में लिखना है। पहला वाला है, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना। तो हमें इसको नसर में लिखना है, तो हम सीधे कहेंगे कि मुझे गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है। मुझे गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है, या मुझको गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है। दूसरा है, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम। तो हम कहेंगे जिस वक्त मुझे ये याद आता है तो मेरे दिल पर चोट लगती है। नज़्म में है, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम। अब अगर हम इसको नसर में लिखेंगे तो हम कहेंगे जिस वक्त मुझे ये याद आता है तो मेरे दिल पर चोट लगती है। तीसरा है, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। तो इसको हम नज़र में यूँ लिख सकते हैं कि काश मेरी आज़ादी मेरे बस में होती या मेरे हाथों में होती। चौथा वाला है, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। तो इसको हम नज़र में यूँ लिख सकते हैं कि मुझे खौफ और डर है कि कहीं मैं इसी पिंजरे में आज़ाद न होने के गम में मर न जाऊं। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4 है, बच्चों इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। तो ये आप खुद करेंगे याद। तो नज़्म है, फिर है सवाल नंबर 5, तौज़ीहात, यानी कि कुछ नीचे लिखा है जिसको मैं पढ़ूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कुछ बच्चे बल्कि कुछ बड़े भी मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों को पिंजरों में बंद करते हैं। परिंदों को बंद करके इन्हें खुशी महसूस होती है। वो इस बात का ख्याल नहीं करते कि उन परिंदों पर क्या गुजरती है। परिंदे आज़ादी की खातिर पिंजरों में फटकते रहते हैं। वो आज़ादी को तरसते हैं। परिंदे की फरियाद का मुताला करने के बाद मालूम हुआ कि पिंजरों में बंद परिंदे किस तरह अपने घरों के लिए तरसते हैं। ये भी मालूम हुआ कि दूसरे परिंदों की जुदाई पर किस कदर परेशान होते हैं। हमें चाहिए कि हम परिंदों को पिंजरों में बंद करने से खुद भी इज्तिनाब करें और दूसरों को भी ऐसा न करने की तरगीब दें। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मज़ाहिब के अवतारों ने जानदार चीज़ों को सताने से सख्त मना फरमाया है। तो बच्चों, यहाँ पे आपसे कुछ गुजारिशात है कि हम में से कुछ बड़े भी ऐसा करते हैं कि हम परिंदों को लाते हैं, फिर हम अपने घरों में पिंजरों में कैद रखते हैं। तो हम इनको दाना पानी सब कुछ देते हैं, हमें तो खुशी होती है कि ये हमारे पास है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। बच्चे तो चाहे मतलब बच्चे करें या बड़े करें, बड़ों की तो बड़े जब ऐसा करेंगे तो शर्म की बात है, क्योंकि छोटों को भी ऐसा करने से मना किया गया है कि हमें कभी भी परिंदों को पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए। हमें तो खुशी महसूस होती है, हम तो खुश होते हैं, लेकिन हम इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि इन परिंदों पे क्या गुजर रहे होंगे, ये कितने गमगीन होंगे अपने साथियों से दूर होके। परिंदे तो उस मतलब
पिंजरे में बैठते हैं लेकिन वो फटकते रहते हैं, वो उछलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ से छलांगे लगाते मारते हैं, वो वहाँ से आज़ाद होने की कोशिश करते रहते हैं, वो आज़ादी को तरसते हैं उस पे। तो लिहाजा हमें ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमने तो ये नज़म परिंदे की फरियाद पढ़ ली है, तो इससे भी हमें मालूम हुआ, इससे भी हम ये जान गए कि ये जो पिंजरों में बंद मतलब परिंदे होते हैं, ये किस तरह से अपने घर वालों के लिए तरसते हैं, किस तरह से अपने साथियों के लिए परेशान होते हैं, किस तरह से अपनी वतन के लिए परेशान होते हैं। लिहाजा और उनके घर वाले, उनके अपने साथी, वो भी बहुत ही मतलब बुरा महसूस करते हैं, वो भी इसके लिए बहुत ही परेशान होते हैं वो भी, लेकिन वो बेचारे बेज़ुबान हैं, वो अपना हाल बयान नहीं कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों, हमें चाहिए कि हमें इन जानवरों को परिंदों में मतलब पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए। हमें इससे खुद भी परहेज़ करना चाहिए। इज्तिनाब मीन्स परहेज़, हमें खुद भी इससे परहेज़ करना चाहिए और दूसरों को भी इससे हमें रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन चीज़ों से दूर रखा है। उन्होंने फरमाया है कि हमें जानवरों को सताना नहीं चाहिए, और उन्होंने जानवरों को सताने से सख्त मना फरमाया है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमारी ये नज़म पूरी ख़त्म हो गई। तो कल फिर आपसे मिलेंगे नया सबक लेके, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।